Okay, so hi guys, this is Keshav Malpani, and we have a very special guest in front of us with Astha Nayak. She got an All-India rank 16 in CLAT 2024. She was also part of 12 Minutes to CLAT's crash course, and she's going to be discussing a lot of things with you about the preparation that we have to take in the last month because Astha ने बहुत recently prepare किया था, so she knows what are certain things that a CLAT aspirant goes through. And Astha is currently studying in her first year at NLS Bangalore, and she'll be sharing a lot of things at the end about the and about NLS Bangalore also, where a lot of people for preparing for CLAT would want to go. So thank you so much, Asta, for sparing some time for this. And we are basically going to be discussing as to what are certain things these students should do in the last month. And आपने ऐसा क्या किया था that you could say आपको ऐसा लगा proved to be a differential, particularly in the last month of the preparation. Thank you, Keshav sir. So I think now CLAT is on 1st December, so roughly there are 4 weeks left. Abhi you should not spend too much time thinking कि what you have not done. Abhi you should focus कि एक महीने में जितना हो सकता है उतना करो. I remember for me in the last month I would also get nervous कि GK का ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है. पर अगर you keep thinking negatively और procrastinate करो कि अभी तक नहीं हुआ तो मैं कैसा करूँगी या करूँगा, उस you should not think like that. In 1 month maximize how much you can do. To give mocks also give as many as you can. I remember I think I gave one every day in the last 2-3 weeks. I would not recommend that, वो ज़्यादा hectic हो जाता है. Okay. पर give as many mocks and keep analyzing. अगर the mock का score नीचे हो जाता है, don't feel bad कि last month में इतना आ रहा है. Analyze and see where you went wrong and what you can improve. और हर mock में improve करना try करो. Right. So अभी इस point पर आस्था, I think the problem with a lot of students, I think आपके साथ भी होगी, was the current affairs backlog because it's never ending. Hmm. है ना, कितना भी रिवाइज कर लो वो नहीं खत्म होता है. So how did you deal with that? So I think current affairs, I remember Keshav sir would tell us कि everything under the sun is GK. CLAT में you cannot prepare कि what will come. तो as much as you can करते रहो. And I remember हमारे CLAT like 24 का GK was very weird. आई डोंट नो अभी 25 में कैसा आएगा. तो डोंट थिंक कि मैंने ये नहीं किया है, मैंने वो नहीं किया. जितना हो सकता है उतना करते रहो. बैकलॉग्स हाउ मच एवर यू क्लियर कुछ तो रहेगा ही. एंड क्लैटमेट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. वो ये नहीं है Also, did you उसमें. have a strategy regarding this? जैसे मतलब जनरली कुछ लोग को ऐसा लगता है that लास्ट का 6 months, which I also sometimes feel कि लास्ट का 6 to 8 months is the most important, are the most important months. वही. और जो बाकी लेट्स से जो 12 month का हम साइकिल बनाते हैं, तो बाकी 4 months हाँ. के जो स्टार्टिंग 4 months है उनके हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं. बट लास्ट एट हाँ. मंथ का तो वी शुड बी 100% श्योर अबाउट ऑल दी इंपॉर्टेंट एंड सम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, बट हमें आ जाने चाहिए वो. Correct. So I had made notes for all topics. So Jan to May, first 4-5 months, I went through the important topics. And June to December or November, I did topics more in detail. Okay. And how did you work out the maths part? Because वो भी एक aspect होता है जो a lot of students are like very weak. तो क्या मतलब we don't try a lot of times. Nobody is weak in finding out the average ratio proportion. But हम लोग कई बार करना नहीं चाहते उसको. So how did you were you a student जिनको maths पसंद था at the start of the तो मुझे तो preparation? एक्चुअली मैथ्स पसंद था टू बी ऑनेस्ट. मुझे 11th Okay. 12th में आई टेकन इट ऑप्शनल सब्जेक्ट का आल्सो. Okay. Okay. बट आई थिंक क्लैट के मैथ्स के लिए यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग. एंड Hmm. इन द फाइन आई थिंक आई रिमेम्बर लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैथ्स इज 12 आउट ऑफ 120. तो नहीं किया तो Hmm. भी चलेगा. पर ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि इंग्लिश लीगल एंड लॉजिकल सबका मोरलेस सेम स्कोर आता है. पर जीके एंड मैथ्स विल हेल्प यू गेट अ गुड रैंक. Okay. तो that I think you should, how much ever you can do, get in maths, because those, even if you get 6 to 8 marks, so rank में वो it will make a big difference. डेफिनेटली आई ऑल्सो अग्री विद दिस. मतलब मैं कई बार ये बोलता रहता हूँ पूरे साल. आई थिंक लास्ट मंथ में Hmm. आके लोगों को हिट होती है बातें. एंड आई थिंक दे व्हेन दे हियर फ्रॉम यू आई दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स. ऑल्सो लास्ट में हम लोग कई बार स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि दैट वेन एवर यू स्टडी, क्योंकि कई बार क्या होता है, दिस इज अ वेरी सिंपल स्टूडेंट साइकोलॉजी. आई थिंक आपको भी लास्ट ईयर ऐसा लगता होगा कि यार व्हाट इफ द एग्जाम डज नॉट वर्क आउट, है ना, क्या करेंगे. और ये पहले से 1-1.5 महीने से सोचने लग जाते हैं rather than thinking about that day कि आज क्या करना चाहिए, what are certain things we should practice or study. So we always ask them to make some kind of a schedule for this particular day कि मैं आज क्या कर सकता हूँ. We can do that in the morning so that we have tasks sorted out rather than having too Correct. much khichdi in our mind. So how did you figure that out? Did you have a schedule? Did you follow it, or did you have a way in which you studied certain subjects in the last month? Yes, so I also liked making down tasks for the day instead of making a timetable.
क्योंकि द मोमेंट यू पुट टाइम फिर वो एक प्रेशर हो जाता है कि भाई दिस टाइम मुझे ये करना है, देन व्हेन इट डजंट हैपन यू फील डीमोटिवेटेड। तो ट्रू। अगर लिस्ट ऑफ टास्क इफ यू मेक दैट इज डेफिनेटली बेटर। एंड अगर हर डे यू से कि मैं 5 सब्जेक्ट करूंगी, तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल 5 ऊपर ऊपर से इफ यू से कि टुडे आई विल डू दीज 2 सब्जेक्ट्स और फिर वो अच्छे से करो, दैट आई थिंक इज डेफिनेटली बेटर। ओके, दैट्स फेयर। एंड जो इसमें हम लोग जनरली सजेस्ट करते हैं कि दो सब्जेक्ट जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली, करंट अफेयर समथिंग जो तो साथ हाँ में चलता ही रहता है एवरीडे, दैट हाँ, तो करंट समथिंग अफेयर्स तो हर यूज दिन करना ही पड़ेगा लास्ट मंथ में। या वी कांट हेल्प दैट। सो यहाँ पर जैसे आप कह रहे हो कि 3 हफ्ते में आपने हर रोज मॉक टेस्ट किया था बाद में, तो हाँ, विच यू आर सेइंग इज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन, तो हाउ मेनी डू यू थिंक दैट समबडी शुड डू इन द लास्ट मंथ? आई थिंक 10 इन द लास्ट 10 to 12 अगर ऑल्टरनेट डे किया तो। I think I didn't give last 3 weeks. Last 2 weeks, maybe I gave one a day. The I think there is advantage and disadvantage to that. Advantage I will say is कि when I went मेरे क्लैट मॉक में I क्लैट के actual day पे I knew exactly कि 2 o'clock शुरू होगा and by 2:30 I need to finish this section. तो वो हाँ, टाइमिंग हेल्प हो जाता है। ट्रू। पर I I would not recommend it क्योंकि वो it can go other way also। अगर if it is demotivating you giving every day फिर मत दो। हाँ नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मॉक में जैसे जैसे लेट्स से यू रोट 14 मॉक्स इन 14 डेज, अब उसमें 14 मॉक्स में अगर आपका दो चार में कोई नंबर कम आता है, देन यू फील कि ओहो दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी, ये भी एग्जाम में हो सकता हाँ, है ना, दीस काइंड ऑफ करेक्ट। थिंग्स क्रॉप अप इन योर माइंड। सो अच्छा, ये भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स हु आर लेट्स से नॉट स्कोरिंग 90 प्लस एट दिस पॉइंट इन टाइम, और मे बी लेट्स से नॉट एबल टू रीच 80 प्लस एट दिस पॉइंट इन टाइम, दे आर द पीपल हु आर मोस्ट डीमोटिवेटेड दिस पॉइंट कि यार शायद नहीं होगा बिकॉज अदर पीपल आर स्कोरिंग बेटर देन अस। So what do you think they should do in order to get a better score? Like could be in terms of attempts, could be in terms of the sections that they missed, could be in terms of the way they're analyzing. What are certain issues that you have felt when you were also at that position in your preparation? सो आई थिंक वन कि यू शुड नॉट थिंक कि अभी मेरा इतना आ रहा है तो क्लैट डे पे नहीं हो सकता, क्योंकि इवन योर बैचमेट्स इन कोचिंग हु आर गेटिंग मोर देन यू, दैट डजंट मीन कि क्लैट डे पे दे विल डू बेटर। सबका इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो हाउ मच Okay, एवर इन yeah. वन Sorry मंथ to यू कैन interrupt you. इम्प्रूव। By the way, guys, Astha had an all-India rank 16. And let me tell you, when you look at the mock test ke results at 12 minutes to glad, she was not in one or two all the time, right? You were not there. Like there were other people also who were above her. So इसीलिए मतलब आस्था जो कह रही है वो बिल्कुल सच है कि नहीं, जरूरी है कि कोई अगर क्लास मॉक टेस्ट में फर्स्ट आ रहा हो या क्लास में बहुत ज्यादा एक्टिव हो हर पॉइंट पे, तो दैट पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू बी यू कुड से क्लियरिंग द एग्जाम, एंड जस्ट वो थोड़ा सा उनका पर्सनालिटी वैसा होता है वेर दे आर मोर वोकल। बट या आस्था, प्लीज कैरी ऑन। यस। हाँ, तो आई थिंक कंपेयरिंग योर सेल्फ टू योर, यू नीड टू कंपेयर थोड़ा एक्सटेंड टू सी वेयर यू आर इन योर कोचिंग, बट दैट डजंट मीन यू शुड थिंक कि मुझसे नहीं होगा। हाँ, तो दैट इज वन पॉइंट आई वांटेड टू ब्रिंग अप। एंड सेकंड, अभी 1 महीना में यू शुड सी व्हाट आर योर वीक सेक्शंस एंड इम्प्रूव दोज। तो मेरे लिए जैसे मैथ्स वाज नॉट एज डिफिकल्ट, बट आई फॉर मी जीके वाज हार्डर, तो आई वुड स्पेंड मोर टाइम ऑन जीके एंड लेस टाइम ऑन मैथ्स। तो यू शुड लुक एट योर मार्क्स स्कोर्स एंड सी तुम्हारे लिए व्हाट इज वीक सेक्शन। दैट मेक सेंस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। तो वीक सेक्शन को, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि क्लैट में पहुंचने मतलब ऑन दैट डे यू कैन नॉट हैव अ वीक सेक्शन, है ना, मतलब एक आध सेक्शन एवरेज हो सकता है, कुछ अबव एवरेज हो सकता है, बट वीक हुआ तो दैट विल ऑलवेज कीप यू डीमोटिवेटेड, क्योंकि वो सेक्शन आप काउंट ही नहीं करते हो फिर एग्जाम में। और हाँ, अगर वो इजी आ गया वो सेक्शन, देन इट्स अ डबल वैमी बिकॉज अदर पीपल विल श्योरली डू इट एंड यू वोंट बी एबल टू डू इट। करेक्ट। सो अल्टीमेटली ऐसा होता है दैट लास्ट मंथ में इवन दो यू प्रिपेयरिंग कितना भी देर पढ़ लो, मतलब यू स्टडी फॉर 8 10 12 वॉट एवर आज यू वांट, बट देर इज समथिंग दैट इज लाइक यू नो, लाइक अंदर से यू फील थोड़ा सा एंशियस अबाउट थिंग्स कि ओके, एक और दिन कम हो गया है, द एग्जाम इज गेटिंग क्लोजर डे बाय डे। सो आई एम श्योर आपको भी लगता होगा, इवन दो अगर कोई मॉक में बेटर करे खराब करे, सबको ही लगता है कि एग्जाम क्लोज आ रहा है। सो हाउ डिड यू डील विद दैट बिट, द स्ट्रेस एंजाइटी पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन? So, I think this point is what you said, sir, कि 8 to 10 hours studying that is enough. Many people think कि मैं और पढ़ूंगी और फिर वो और अच्छा होगा, पर हम्म। after some time I think you will not understand also कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो 8 to 10 hours that is more than enough, और 7 8 hours sleep also I think you need. I remember some of my batchmates they would sleep less and study more, पर उससे I don't think उतना फायदा होता है मेरे ओपिनियन में। मेरे तो को है if ना you're कुछ doing, कुछ, हाँ प्लीज प्लीज कैरी ऑन। नहीं नहीं सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मेरे को कुछ बच्चे ना क्लास में ऐसे बोलते हैं कि सर हमने तो आजकल ना इंसोम्निया हो गया टेंशन में, कि हमें तो 4 4 5 5 बजे तक नींद ही नहीं आती है। डिड समथिंग लाइक दिस हैपन विद यू आल्सो? हाँ, तो दिस इज अ नेचुरल थिंग कि वो नर्वसनेस से होता है, हाँ बट यू हाँ। शुड ट्राई एंड बैलेंस कि 8 hours यू 8 to 10 hours यू स्टडी, 7 8 hours यू स्लीप।
and you keep 8 hours ki, you walk thoda, you exercise, you talk to your friends or family थोड़ा de-stress करने के लिए. So that I think is very important. और आई थिंक मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बोल रहे हो कि मतलब एवरीथिंग नीड्स टू बी इन बैलेंस. मतलब क्योंकि पता हाँ, है क्या होता है, हम लोग एक दिन में 17 घंटे पढ़ने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि पिछले दिन हमने 4 ही घंटे पढ़ा होता है, तो हम एवरेज हाँ, करने की कोशिश करते हैं कि वो 10 घंटे का एवरेज बन जाएगा. तो दैट हाँ, डजंट सेट आउट है ना, दैट डजंट मेक सेंस इन दिस एग्जाम. सो correct. You should balance हाँ. out पढ़ना also or doing other things other than studying. या दैट्स फेयर, दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट एक्चुअली. सो यहाँ पर ना मतलब मॉक से रिलेटेड, करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड लोगों को काफी समझ में आ गया. एक होता है स्पीड का इशू, वेयर अ लॉट ऑफ पीपल आर हाँ. नॉट एबल टू अटेम्प्ट टू मच. अब हाउ डू यू टेल देम एंड हाउ वुड यू गाइड देम एज समबडी हु क्लियर्ड द एग्जाम लास्ट ईयर कि कैसे स्पीड मेंटेन करनी चाहिए उनको, मतलब हाउ डू दे improve their speed in the exam? I think this will come with more practice only. If you can't give full 2 hour का mocks, if you do sectionals, you see कौन से section में तुम्हारा speed low है, give that section का more sectional test. So Okay. that because this is speed is something, speed and accuracy दोनों सिर्फ practice से आएंगे. तो that is Yeah. one thing in the last month more than revising more topics. If you give sectional tests, then you can see कि actually तुम्हारा speed accuracy कैसा चल रहा है. क्योंकि वो दोनों में बैलेंस करना है. अगर यू आर इंक्रीजिंग स्पीड बट यू आर गेसिंग द आंसर्स, फिर तुम्हारा एक्यूरेसी नीचे हो जाएगा. ट्रू. बिल्कुल सही बात है. तो आई थिंक आई होप एवरीबडी इज टेकिंग नोट ऑफ व्हाट शी इज सेइंग. एंड आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आस्था मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आप, क्योंकि बिकॉज पीपल वुड फॉलो यू एंड विल बी लाइक कि इन्होंने किया था लास्ट ईयर तो इनकी बात ज्यादा अच्छे से मानते हैं. सो आई विल नॉट लाइक elongate this unnecessarily because I've gotten the answers to most of the questions, but I just want to ask you the last thing. So you've realized the analyst dream now, right? Everybody wants to go to this law school. Whoever is preparing for this exam has this dream. So how do you feel there now? Like what is the opinion? आपने almost एक साल वहां पर कर लिया है. So how do you feel about NLS? अभी मेरा आई थिंक एनएलएस आई जॉइंड इन जुलाई, तो और एनएलएस का हो रहा है. ट्राइमेस्टर सॉरी. सिस्टम, हाँ, तो मेरा हाँ एक ट्राइमेस्टर हो गया है. हाँ हाँ. आई रिमेम्बर मेरे लाइक वी वुड ऑल ड्रीम कि एनएलएस जाना है, पर Yeah. इट इज डेफिनेटली अ गुड फीलिंग कि यू सेट सम गोल और वो क्लियर हो जाता है. एंड हम्म. आई वांट टू टेल ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स कि इन द लास्ट मंथ आई आल्सो फेल्ट कि दिवाली है, अगर फेस्टिवल्स है और मैं पढ़ रही हूँ, मेरे स्कूल में फ्रेंड्स वो सब जो जिनका क्लैट नहीं था उन्होंने उतना नहीं पढ़ना होता था. बट हम्म. दैट दिस वन लास्ट मंथ इफ यू स्टडी आफ्टर क्लैट का रिजल्ट कम्स टिल यू जॉइन एन एनएलयू इन जुलाई अगस्त, those 6 months will be very fun क्योंकि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है कि you've हाँ. cleared the exam. और कुछ टेंशन नहीं रहेगा. इफ यूर अ फ्रेशर, इवन इफ यू हैव टू गिव बोर्ड्स, यू नो कि सिर्फ पास होना है तो उतना यू शुड स्टडी वर्क हार्ड, पर हम्म. उसका भी टेंशन नहीं होगा. और बोर्ड्स के बाद यूल बी फुल्ली फ्री. अदर स्ट्रीम्स के दे हैव टू गिव उनका एग्जाम्स बोर्ड्स के बाद, पर तुम्हारा वो नहीं होगा. तो दिस वन Yeah. मंथ इफ यू वर्क हार्ड यू क्लियर क्लैट, उसके बाद you'll have good 6-7 months. Because and also they have to be ready for the hectic curriculum at NLS if they go there. I'm pretty sure it's quite hectic, right? I mean, you guys have to be at it every single day, every हाँ, uh, एंड yeah. तो हमारे क्लासेस आर आल्सो वेरी हेक्टिक बट इट्स अ गुड गुड कॉलेज. I'm sure. I'm 100% sure. And I think सब लोग ही मतलब एक साथ I think are in that grind, तो वो चलता रहता है. That is how you develop a lot of things. So that's very good to hear. So Asta has completed full trimester there and she has good things to say. है ना? Before we recorded this, she was also saying कि काफी ज्यादा hectic भी होता है ना? तो that's very nice. And I just want to like thank you for this entire discussion that was there. Although it was a very short discussion, but we actually pointed out certain very important aspects of the preparation जो last month में करना है. The reason why we are not having a full-fledged discussion is that both of us do not want to waste your time in the last month कि आप बड़े-बड़े interviews देख रहे हो बैठ के, which does not set out right, which does not make sense. तो आस्था ने आपसे जो जो भी चीजें डिस्कस की हैं, प्लीज इंश्योर कि आप उनको अपनी हैबिट में डाल पाओ rather than just looking for some other interview now and be like कि चलो उनकी भी बात सुन लेते हैं. There is not going to be much of a change. She has cleared it with all in rank 16, and I'm pretty sure that you guys can also do something like that if provided you do something in the last month. And after I think ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आपके आपने बताया था जैसे आपके कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ गए थे इस पर्टिकुलर आपके बैच में हाँ, who had let's say prepared for 1 डेढ़ 2 महीना also because of करेक्ट. the हाँ, easiness of the paper भी कह सकते हैं. But that's also a possibility this year. You never know. So there's like करेक्ट. nobody should ever lose hope, right? यस.
Definitely. And I Okay. think one Yeah. thing I forgot to say earlier, Keshav sir has this video about highs and lows of CLAT preparation. Okay. I I had it मैंने भी downloaded. देखा इस बारे में. हाँ बहुत पुराना वीडियो है लेकिन आई रिमेम्बर आई Okay. हैड इट डाउनलोडेड ऑन माय फोन क्योंकि whenever I would feel nervous in the last few weeks मैं वही वापस देखती रहती थी. Okay. हम्म. ठीक है, थैंक यू सो मच आस्था, मुझे अपना पुराना वीडियो भी आपने याद दिलाया, एंड आई थिंक अदर्स विल आल्सो गो एंड वॉच इट नाउ. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई होप यू हैव whatever remaining of your vacation, आप enjoy your time and you have to go back to the grind, and all the best for your rest of your law school. Thank you. Thank you so much Asta for your time again. Bye bye.